السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولس نریٹیو۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ تمہاری مرضی ہے، اگر دارم کی زندگی چاہتی ہو تو سوچ لو تمہیں آگے کیا کرنا ہے۔ اگر تم اس کے نکاح میں رہی تو وہ نہیں رہے گا، یاد رکھنا۔ اگر تمہاری مرضی، وہ تم سے حرام تعلق نہیں بنانا چاہتا، ورنہ تم جانتی ہو تم اس کے گھر میں ہو، وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تمہارا فون چھوڑ کر جا رہی ہوں، آگے تم سمجھدار ہو۔ وہ اس کے قریب سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اس کا فون پاس ہی پڑا تھا، لیکن اٹھانے کی اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آج 3 دن کے بعد وہ گھر واپس آ گیا تھا۔ نہ تو وہ اس وقت کسی سے بات کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی کسی کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ جان جاتے جاتے رہ گئی، لیکن اس ایکسیڈنٹ کو اس نے اتنا نارمل لیا تھا جیسے کوئی عام سی بات ہو۔ یہ چند ہی دن میں اس پر تیسرا جان لیوا حملہ تھا۔ ایک طرف چاچو سائیں کی حالت اور دوسری طرف دارم کا ایکسیڈنٹ، اور پھر تیسری نور کی ناقابل یقین حقیقت کا سامنے آنا۔ سب گھر والے شاکڈ میں تھے۔ کسی کی نظر لگ گئی تھی اس گھر کی خوشیوں کو۔ اچانک کیا سے کیا ہو گیا تھا، کوئی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ سب خاموش تھے۔ بڑی بی بی کا کہنا تھا کالی نظر ہے۔ کیا کسی کی کالی نظر اس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے کہ ہنستا کھیلتا گرانا یوں اس حال میں پہنچ جائے؟ اصغر صاحب تو مسلسل بکرے صدقے دے رہے تھے، غریبوں میں خیرات بانٹ رہے تھے کہ کسی طرح سے ان کے گھر پر آئی مصیبت ٹل جائے۔ دارم سائی نے تو کسی سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، صرف ساحر سائی ہی اس کے کمرے میں جاتا اور اس کا خیال رکھتا۔ اس کے علاوہ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ دارم شاہ کا غصہ برداشت کرتا۔ زرنش اور زاوش نے تو رو رو کر اپنا حال بگاڑ رکھا تھا، جبکہ 2 دن کے بعد عارش بھی واپس پیرس جانے والا تھا، لیکن دارم سائیں کو اس حال میں چھوڑ کر جانے کا اس کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے، نہ جانے وہ خود میں اتنی ہمت کہاں سے لائی تھی۔ لیکن دارم کا اس نے نمبر ملا لیا تھا۔ دارم سائیں کے ایکسیڈنٹ کی خبر نے اسے بری طرح سے توڑ دیا تھا۔ 10 دن گزر چکے تھے، اس کا فون اس کے پاس ہی تھا، لیکن اسے صرف ایک ہی بار فون کرنے کی اجازت تھی، اور وہ صرف اور صرف دارم شاہ کو۔ اگر اس نے کسی اور سے رابطہ کرنے یا ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو اس کا انجام کیا ہوگا وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ دوسری طرف کال جا رہی تھی، کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ گزرے 10 دن اس کے لیے قیامت تھے۔ پل پل دارم سائیں سے دور ہونے کا خوف، اس کا نام خود سے الگ کرنے کا ڈر اسے بے جان کر گیا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ اسے بتا دے کہ وہ یہاں کس حال میں ہے۔ کاش وہ اسے بتا پاتی کہ اس کے ساتھ کون سا گیم کھیلا گیا ہے، اور اس کے ساتھ گیم کھیلنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی سگی ماں تھی۔ لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ اسے کچھ بھی بتانے کا مطلب اس کی موت تھا، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، اسے ہی اتنے دکھ کیوں ملے تھے۔ کیا اس کی زندگی میں خوشیوں کی لمٹ وہ 5 مہینے تھے جو اس نے دارم کے ساتھ گزارے؟ کیوں وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی؟ وہ اتنی بے بس تھی، کیوں وہ اپنوں ہی کے ہاتھوں کھلونا بن گئی تھی؟ بین نے اسے وقت دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ تمہارے پاس 1 ہفتے کا وقت ہے، دارم کو کہو کہ تمہیں طلاق دے دے، اور اگر وہ تمہیں طلاق نہیں دیتا تو اپنی جان سے جائے گا۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ اذیت کی کس انتہا پر تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے خود کو دارم کو فون کرنے کے لیے کس طرح تیار کیا تھا اسے نہیں پتا تھا، لیکن اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے اس نے دارم کو فون کیا تھا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس حال میں ہے، اس وقت کیسا ہے۔ پچھلے 10 دن سے وہ اس کی آواز سننے کو تڑپ رہی تھی، لیکن یہ ظالم لوگ اسے اس سے بات کرنے کی اجازت بھی نہیں دے رہے تھے۔ اجازت بھی دے رہے تھے تو صرف اور صرف طلاق مانگنے کے لیے۔ بیل مسلسل بجتی رہی، لیکن دوسری طرف سے فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ شاید اس کا نمبر دیکھ کر اس نے جان بوجھ کر فون نہیں اٹھایا ہوگا، یا شاید وہ اس کے طلاق مانگنے سے پہلے ہی اسے اپنی زندگی سے باہر کر چکا ہے۔ آخر اس کے خلاف اتنا بڑا گیم کھیلا گیا تھا، اس کی ذات کو داغدار کیا تھا، اس کے کردار پر دھبا لگایا تھا۔ وہ جو اس ملک میں رہنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اپنے خاص کے لیے بچا کر رکھتی تھی، اس کے کردار کو اتنی بے دردی سے میلا کر دیا گیا، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائی۔ بین نے اپنا تعارف ان لوگوں کو اس کے بوائے فرینڈ کے روپ میں کروایا تھا۔ یہ بات تو بین اسے خود آ کر بتا چکا تھا۔ اس وقت حویلی میں اس کے کردار کو کس طرح سے اچھالا جا رہا ہوگا وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ اب تو شاید وہ اسے منہ لگانا بھی پسند نہیں کرے گا۔ کہاں وہ اس کا نام اپنے نام کے ساتھ برداشت کرتا، وہ تو اس سے زیادہ بےتاب ہوگا اپنا نام اس کے نام سے الگ کرنے کے لیے۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے قریب کھڑا تھا۔ بازو کی ہڈی ٹوٹ جانے کی وجہ سے ابھی تک ہاتھ پر پلسٹر لگا ہوا تھا، جبکہ خود تیسرے دن گھر واپس آ گیا تھا۔ ہاسپٹل کے اس ماحول میں اسے گھٹن ہوتی تھی۔ گھٹن تو اسے اپنی زندگی سے ہو رہی تھی۔ پچھلے کچھ دن سے وہ اندر ہی اندر مر رہا تھا کہ محبت اس قدر بے بس کر دیتی ہے۔ کیوں کی تھی اس نے اس بے حس بے مروت سے محبت؟ وہ اپنے کال کا سچا تھا۔ اس نے 15 سال انتظار کیا تھا اس کا، پل پل۔ وہ کسی اور کا وجود تو کیا تصور بھی کبھی اپنے ذہن میں نہیں لایا تھا۔
وہ صرف خود ہی نہیں بلکہ اس کا خیال بھی بے وفائی سے پاک تھا۔ وہ صرف اور صرف اس کا تھا، آج سے نہیں بلکہ 15 سال سے، جب سے وہ اس کے نکاح میں آئی تھی وہ صرف اس کا ہو گیا تھا۔ تو وہ کیسے اس کے دل میں اپنے لیے محبت نہیں جگا پایا؟ اس نے تو سوچا تھا اگر وہ اس سے محبت نہیں کرتی تو کیا ہوا، وہ اسے اتنی محبت دے گا کہ وہ مجبور ہو جائے گی اس سے محبت کرنے کے لیے۔ اپنے چچا سائیں سے وہ آنکھیں نہیں ملا رہا تھا کیونکہ اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی بیٹی مجھ سے محبت کرے گی، وہ مجھے چاہے گی، وہ مجبور ہو جائے گی، اور اگر وہ محبت نہیں کر پائی تو بھی وہ اس کی محبت پر ایمان لے آئے گی، وہ اسے چھوڑ کر نہیں جا پائے گی، اور وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ کتنا بڑا کھیل کھیلا تھا اس کی ماں اور اس سے مل کر۔ وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی ماں تکلیف میں ہے، ورنہ وہ تو شاید اسے قید کر لیتا ہمیشہ کے لیے، لیکن اسے جانے نہیں دیتا۔ شاید وہ صرف وڈیروں کا خون تھا، وڈیرا نہیں تھا۔ اگر وڈیرا ہوتا تو وڈیرا بن کر دکھاتا۔ وہ بھول گیا تھا اپنے باپ دادا کی مثالیں۔ اس گھر میں اس نے کب اپنے باپ کو اپنی ماں کا ہر حکم بجا لاتے دیکھا تھا؟ اس نے کب اپنے چچا سائیں کو اپنی چچی سائیں سے نرمی سے بات کرتے دیکھا تھا، انہیں عزت دیتے دیکھا تھا؟ اس کے خاندان کا رواج ہی الگ تھا۔ عورت کی عزت کی مثالیں تو وہ بنا رہا تھا۔ عورتوں کو ان کا حق دینا چاہیے، ان کے فیصلوں کو سمجھنا چاہیے، ان کے خوابوں کی قدر کرنی چاہیے، انہیں محبت چاہت دینی چاہیے، ان کی ہر سوچ کو سمجھنا چاہیے۔ یہ تو اس کی سوچ تھی، لیکن وہ کہاں جانتا تھا کہ اس کی یہ غلطی آج اس پر اتنی بھاری پڑ جائے گی۔ وہ کیوں نہیں سمجھ پایا کہ نور ان عورتوں میں سے تھی ہی نہیں، وہ نرمی اور محبت کے قابل کبھی تھی ہی نہیں۔ نور کے لیے اس نے کوئی حدود بنائی ہی نہیں تھی، وہ تو اس کا دل تھی، جیسے بھی دھڑکے بس خوش رہے، اور اس کی خوشی کی خاطر ہی اس نے آج خود کو برباد کر لیا تھا۔ کاش وہ پہلے دن اس کی لگام کھینچ لیتا تو شاید آج اتنی بڑی غلطی کرنے کے بارے میں وہ سوچتی بھی نہیں۔ اگر پہلے ہی دن وہ اسے بیوی بناتا، محبت نہیں، تو یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں۔ کھڑکی پہ کھڑا وہ مسلسل باہر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کا فون نہ جانے کتنی دیر سے بج رہا تھا، جسے وہ اگنور کر رہا تھا جب ساحر کمرے میں داخل ہوا۔ دھرم سائیں کہاں کھوئے ہو تمہارا فون کب سے بج رہا ہے؟ وہ ایک نظر اسے کھڑکی پر دیکھتا خود بیڈ کی طرف آیا تھا جہاں اس کا موبائل فون پڑا تھا۔ موبائل پر نور کا واٹس ایپ نمبر جگمگاتا دیکھ کر وہ فون سمیت اس کے پاس چلا آیا تھا۔ اٹھا لو جس کا بھی ہے، وہ اسی انداز میں بولا تو ساحر نے بنا کچھ بولے فون اس کے سامنے کر دیا۔ میں نے کہا اٹھا لو۔ ایک نظر اسکرین پر دیکھتا وہ چہرہ پھیر گیا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سے جیسے ہی فون اٹھایا گیا تھا اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، لیکن جس کی امید پر وہ بیٹھی تھی اس نے تو شاید اسے بات کرنا بھی پسند نہ کیا۔ دوسری طرف سے ساحر کی آواز پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام، میں بات کر رہی ہوں درنور، وہ بڑی مشکل سے بول پائی۔ جی میں سن رہا ہوں، کہیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ اسی طرح سرد آواز میں بولا، شاید اس کے بارے میں جو باتیں کی گئی تھی وہ اس تک بھی پہنچی ہوئی تھیں۔ مجھے دارم شاہ سے بات کرنی ہے، بہت ضروری، آپ انہیں فون دیں، اس نے بڑی ہمت سے کہا تھا۔ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، آپ جو بھی کہنا چاہتی ہیں مجھ سے کہیں، میں آپ کی بات اس تک پہنچا دوں گا۔ دارم کے اشارے پر ساحر نے اپنی بات جاری رکھی جبکہ فون سے آواز باہر تک آ رہی تھی۔ دوسری طرف سے ساحر کی اس بات نے نور کے لیے آسانی پیدا کر دی تھی۔ دارم سے طلاق مانگنا اس کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پہلے بھی یہ غلطی بہت بار کر چکی تھی، لیکن اس بار بات ہی الگ تھی۔ مجھے طلاق چاہیے، آپ انہیں بتا دیجیے گا کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ مجھے فارغ کر دیں، کیونکہ 6 مہینے مکمل ہو چکے ہیں، بابا سائیں کی شرط پوری ہو چکی ہے۔ میں مزید اپنا وقت ان کے ساتھ برباد نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے انہیں بتا دیں کہ مجھے طلاق دیں تاکہ وہ اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کر سکوں۔ اس نے اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے ایک ہی بار میں جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ ساحر شاہ کا دل چاہا کہ وہ فون اتنی شدت سے دیوار پر دے مارے کہ فون کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کا بھی کچھ نہ بچے جو آج اس کے بھائی کی تکلیف کی وجہ بنے ہوئی تھی۔ دیکھو نور، میری بات سنو، کچھ معاملات فون پر طے نہیں ہوتے، بہت کچھ ہے جو ہمیں آمنے سامنے بیٹھ کر حل کرنا پڑے گا، اور اس نے بہت حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ دیکھیں ساحر ادا، میں کسی لمبے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی، بس سیدھی سی بات ہے، میں اس انچاہے رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ بات کرنے کے لیے اب کچھ بھی بچا ہی نہیں ہے، میں بس ختم کرنا چاہتی ہوں سب کچھ۔ اس نے پھر سے کہنے کے لیے الفاظ جمع کیے اور ایک ہی سانس میں بول دیا۔ ساحر سے یہ باتیں کہنا جتنا آسان تھا، وہ جانتی تھی دارم کے سامنے شاید اس کی بولتی ہی بند ہو جائے گی۔ شاید اللہ نے اس کی راہ آسان کر دی تھی۔ دارم سے علیحدگی کے لیے ساحر کو اس کا سہارا بنا دیا تھا۔ کیوں بحث کر رہے ہو ساحر سائیں؟ پوچھ کر بتاؤ مجھے، اس سے فون پر طلاق چاہیے یا پھر کاغذات تیار کرواؤں؟ کتنی دیر تک فون سے آتی آواز کو سنتا رہا؟ پھر جب بولا تو دوسری طرف نور کو جیسے سانس لینے کے لیے اپنی ہی سانسوں کی کمی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر نکلے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خود فون اپنے ہاتھ میں لے کر اسے آزادی کا پروانہ سناتا، وہ فون بند کر چکی تھی۔ فون کو کسی اچھوت کی طرح خود سے دور پھینک کر وہیں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دارم کے لہجے کی نفرت محسوس کر کے اس کا دل چاہا کہ وہ خود کو ختم کر لے یا پھر اس ماں کو ختم کر دے جس کی وجہ سے آج وہ اجڑ رہی تھی۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں نوچتے وہ وہیں اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ اس کا دل چاہا وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے یا پھر اپنے آپ کو مٹا دے، اور وہ ایسا کر گزرنے کو تیار تھی۔ مزید ذہنی ٹینشن سے نکلنے کے لیے
वो तेज़ी से उठती अपने कमरे से बाहर निकली थी। उसकी हालत दीवानों जैसी हो रही थी। वो तेज़ी से किचन की जानब गई, लेकिन शायद उसके पीछे आती समरा ने उसका इरादा भांप लिया था। वो तेज़ी से उसके पीछे आई और उसे अपने शिकंजे में कैद करने लगी। छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। सारे फसाद की जड़ मैं हूँ ना, तो मैं खुद अपने आप को ख़त्म कर लेती हूँ। मैं ही नहीं बचूंगी तो कोई मसला नहीं होगा। तुम माँ नहीं, डायन हो। तुमने मेरा घर बर्बाद किया है। अल्लाह तुम्हें कभी सुकून में नहीं रहने देगा। अगर मैं मर गई ना, तब भी कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम माफ़ी के लायक नहीं हो समरा। ना तो तुमने अपना घर बसाया और ना ही मुझे बसने दे रही हो। तुमने कभी अपनी औलाद को समझने की कोशिश नहीं की। तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं तो क्यों पैदा किया? क्यों मुझ पर मेरी ज़िंदगी हराम कर दी? क्यों मुझसे मेरे मोहब्बत करने वालों को छीन लिया? क्यों मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया? नफ़रत है मुझे तुमसे, सुना तुमने? नफ़रत। तुम याद रखना, अगर दारम साई ने मुझे तलाक दी तो मैं मर जाऊँगी समरा, याद रखना। बल्कि नहीं, मैं भी मर जाती हूँ। इससे पहले कि वो मुझे खुद से अलग करे, मैं अपने आप को ज़िंदगी से अलग कर दूँगी। हाँ, मैं ख़त्म कर दूँगी अपने आप को। उसे पीछे की जानब धक्का देती वो इतनी तेज़ी से छुरी के साथ अपनी नस पर कट लगा चुकी थी, जिस पर समरा की भी चीख निकल गई। उसे 24 घंटों के बाद होश आया था। उसने आंखें खोली तो इस वक्त वो किसी हॉस्पिटल के बंद कमरे में बिल्कुल अकेली पड़ी थी। उसे कुछ याद नहीं था। बेहोश हुए वो बस इतना जानती थी कि वो जीना नहीं चाहती। शायद उसका खून देखकर समरा भी इनके डर से उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आई थी। वो उसके साथ नहीं आना चाहती थी। पता नहीं समरा ने किस तरह उसे अपने साथ घसीटा था और उसे गाड़ी तक ले आई थी। शायद ड्राइवर ने भी उसकी मदद की थी। उसे कुछ याद नहीं था। वो नहीं आना चाहती थी, उसके साथ मर जाना चाहती थी ताकि कभी ज़िंदगी में दारम का सामना ना कर पाए। वो उसे कभी नज़रें नहीं मिला पाएगी। शायद वो खुद ही कभी उसकी शक्ल देखना गवारा नहीं करेगा। दारम साईं की नफ़रत को महसूस करके उसका दिल चाहा कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए, लेकिन शायद अभी मौत भी उसका मुकद्दर नहीं थी। उसकी ज़िंदगी में और रसवाइयाँ लिखी हुई थी। वो वहीं पर मुसलसल लेटी छत को घूर रही थी जब कोई अंदर दाखिल हुआ। उसने एक नज़र दरवाजे की जानब देखा जहाँ एक डॉक्टर खड़ी थी। उसने एक बार फिर से अपनी निगाहें छत की जानब कर लीं। ज़िंदगी से मोहब्बत नहीं है आपको? उसकी रिपोर्ट को देखते हुए डॉक्टर ने बात शुरू की तो एक नज़र उसे देखकर फिर से चेहरा फेर गई। हाँ, लेकिन उसकी इतनी साफ़ उर्दू बोलने पर उसे हैरत ज़रूर हुई थी। इसका मतलब है आप मुझसे बात नहीं करना चाहती? कोई बात नहीं, मैं भी आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि खुद से मोहब्बत ना सही, लेकिन अपने बच्चे से मोहब्बत करें, वो भी सिर्फ चंद दिन का है। डॉक्टर के हैरत अंगेज़ इंकशाफात पर वो उसे देख कर रह गई थी। आपकी हैरानगी देखकर मुझे लगता है कि आप शायद इस बात से वाकिफ़ नहीं हैं। आप 3 हफ़्तों से एक नए ओहदे पर फ़ाइज़ होने की तैयारियों में हैं, लेकिन शायद आपको अभी तक इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ। डॉक्टर की मुस्कुराती आवाज़ पर उसका हाथ बेइख्तियार अपने पेट पर आ गया था। खूबसूरत है ना ये एहसास? उसकी बेइख्तियारी पर डॉक्टर की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। ये बात और कौन जानता है? क्या वो जो औरत मुझे अपने साथ लाई थी उसे पता है? उसने बहुत परेशानी से उससे पूछा था, जबकि उसकी घबराहट पर डॉक्टर ने अपना हाथ उसके सामने किया जो उससे मज़बूती से थाम लिया था। नहीं, किसी को भी कुछ नहीं पता। मैंने उन्हें कुछ बताया ही नहीं सरदारनी साहिबा। उसके सरदारनी साहिबा कहने पर वो हैरानगी से उसे देखने लगी। वो किस हवाले से उसे बुला रही थी उसे समझ नहीं आया। आपकी वालदा के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपके साथ ज़्यादा देर गुजारती। वो तो सुबह से ही यहाँ से किसी पार्टी का कहकर जा चुकी हैं। बड़ी अजीब माँ है, लेकिन क्या है ना, सरदार दारम शाह का बच्चा सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, हम गांव वालों के लिए भी अहम है। आप मेरी बात सुनकर यकीनन हैरान हो रही होंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं भी उसी गांव की एक लड़की हूँ। आज मैं इस मुकाम पर आपके शौहर की वजह से ही हूँ। औरतों के हकूक़ के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, यहाँ तक कि मेरे वालिदैन से लड़कर मुझे यहाँ भेजा है मेरी तालीम मुकम्मल करने के लिए, और फिर बाद में मुझे इस अस्पताल में जॉब मिल गई। आज मैं बहुत खुश हूँ और फ़ख्र से कह सकती हूँ कि मैं सरदार दारम शाह के गाँव की बासी हूँ। और फ़िक्र ना करें, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊँगी। लेकिन आप अपना वक्त बिल्कुल बर्बाद ना करें। अभी सरदार साईं को फ़ोन करें और उन्हें बताएं कि वो बाप बनने वाले हैं। मुझे हैरानगी तो हुई थी आपको यहाँ देखकर, क्योंकि मैं आपकी शादी पर नहीं गई थी, लेकिन आपकी शादी की तस्वीरें मेरे पास महफूज हैं। और अब आपको यहाँ देखकर मैं बहुत परेशान हुई, लेकिन आपकी माँ की गैर जिम्मेदारी को देखते हुए ये बात मैंने उन्हें नहीं बताई थी। और सच कहूँ तो मुझे कुछ मशकूक सी लगी, कुछ अजीब। और फिर आपकी इजाज़त के बगैर मुझे ये बात गाँव में बताना भी मुनासिब नहीं लगी, क्योंकि शायद आप सरदार साईं को खुद ही खबर देना चाहती होंगी। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं? इससे पहले कि वो कुछ भी कहती, नूर बोली, जबकि अब हैरान होने की बारी डॉक्टर की थी। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढ कर थक गया हूँ और तुम यहाँ बैठकर आंसू बहा रही हो। साहिर साईं उसे पूरे घर में तलाश करके किचन की तरफ आया तो वो उसे किचन की एक कुर्सी पर आंसू बहाती नजर आई तो उसके पास ही बैठ गया। तो और क्या करूं, मुझसे मेरे भाई की हालत देखी नहीं जाती। आप देख रहे हैं कितने दिनों से वो कमरे में बंद है, कमरे से निकलते ही नहीं, किसी से बात नहीं करते। और वो नूर, अल्लाह उसे कभी खुश ना रहने दे। जाविश, ये क्या तरीका है? किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, जानती हो ना, किसी दुश्मन को भी बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। और नूर तो फिर हमारी सगी चचाजाद है,
हो सकता है हमने कभी उसे समझा ही ना हो, उसे जानने की कोशिश ही ना की हो। वो कभी भी हमारे माहौल का हिस्सा थी ही नहीं, वो हमेशा से वापस चले जाना चाहती थी। ये शादी भी एक समझौते के तहत ही हुई थी, एक रिस्क पे ये शादी करवाई गई थी। चाचू साईं को लगता था कि उनकी बेटी सुधर जाएगी, जब वो दारम साईं के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो सका, ये समझौता कभी रिश्ता बना ही नहीं, ये सिर्फ चाचू साईं की एक गलत फहमी थी। वो उसके पास बैठा उसे समझा रहा था, जबकि वो मुसलसल आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। साहिर साईं, हमने नूर को बहुत प्यार दिया, उसे समझने की कोशिश की, उसे हमेशा अपना जाना। उसने कभी भी हमें अपना नहीं समझा और मेरे भाई को यूँ दुख देकर चली गई। क्या उसके दिल में इतने वक्त में भी कभी दारामदा के लिए मोहब्बत नहीं जागी? वो कैसे इतनी बेहिस हो सकती है? वो आखिर खून तो हमारा ही है ना, फिर कैसे वो हमारे साथ ऐसा कर सकती है? उसके कंधे पर सर रखती वो रोए जा रही थी, जबकि साहिर चाहकर भी उसका गम कम नहीं कर पा रहा था। भाइयों का दर्द भी भला कोई बहन बुला सकती है? वो बहन थी और वो जानता था कि वो उसके जितने आंसू साफ करेगा उतनी ही वो और बहाएगी। कभी भाइयों के गम में भी क्या बहनों की आंखें खुश्क हुई हैं? इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, हौसला रखो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। यकीनन इसमें भी दारम साईं की कोई बेहतरी ही होगी। मुझे ये तो नहीं पता कि दारम साईं का अगला फैसला क्या होगा, लेकिन इतना पता है कि नूर को अपने साथ नहीं रखना चाहता। मेरा मतलब है वो उसके साथ जुड़े इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर देना चाहता है। शायद जल्द ही दोनों में तलाक हो जाएगी, और अगर तलाक हो गई तो शायद कुछ वक्त के बाद दारुम साईं दूसरी शादी कर ले। लेकिन एक ही इंसान के नाम पर सारी ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं की जा सकती है ना। और वैसे भी मेरा नहीं ख्याल कि वो लड़की इस काबिल थी कि उसे अच्छी यादों में रखा जा सके। मुझे तो यकीन नहीं आता कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उसमें इतनी हिम्मत है कि वो खुद फ़ोन करके दारुम साईं से तलाक मांग रही है। वो अपनी हैरत छुपा नहीं पाया। क्या नूर का फ़ोन आया था? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी बात करवाते उससे, मैं उसे बताती कि उसका बाप और शौहर यहाँ किस हाल में है। चलो मेरे भाई के लिए ना सही, लेकिन अपने बाप के लिए तो दिल में थोड़ी सी जगह होगी ना। अपने ही खून को बुला चुकी है क्या? उस जाविश का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। ये सारे मामले दारुम साईं खुद तय कर लेगा, हमें बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं, उनका पर्सनल मैटर है। और जहाँ तक बात चाचू साईं की है, तो आज चाचू साईं जिस हाल में है उसके पीछे नूर ही तो है। समरा के दूसरे शौहर का फ़ोन आया था, उन्हें उनको याद दिलाने के लिए 6 महीने गुजर चुके हैं, और नूर अब अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती है अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ। यकीन नहीं आता कि उस लड़की का किसी के साथ ऐसा ताल्लुक़ भी हो सकता है, लेकिन सिन्नान साईं ने अपने कानों से सुना है। खैर तुम उठो यहाँ से, क्या हालत बना रखी है तुमने? उठो, जाकर मुँह हाथ धो लो, और आँखों का देखो हशर बिगाड़ कर रखा है। वो उसकी आँखें अपने हाथों से साफ़ करते हुए उसे ज़बरदस्ती उठाने लगा। उसके हाथ थाम कर उठाने पर वो भी खामोशी से उसके साथ उठती अपने कमरे की तरफ आ गई थी। देखिए सरदारनी साहिबा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हॉस्पिटल के असूल तोड़ रही हूँ, लेकिन सरदार साईं के लिए कुछ भी। हम यहाँ हॉस्पिटल में मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं किए गए, वरना कुछ ना कुछ करके आपके दारम साईं से बात करवा देती, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ पर वैसे भी फ़ोन इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता, इसीलिए मैं काफ़ी दिनों से फ़ोन लाने की गलती कर भी नहीं रही। आपको नहीं पता, अगर यहाँ किसी के बैग में मोबाइल फ़ोन बरामद हो जाए तो अलग से फ़ाइन भरना पड़ता है, और अगर मैं आपको यहाँ पर किसी से फ़ोन लेकर भी दूँ तब भी मेरे लिए मसला हो जाएगा। मैं अपनी नौकरी खोना नहीं चाहती। अब ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती, वरना ड्यूटी टाइम के बाद मैं आपको अपने साथ लेकर भी जा सकती थी। आपको समरा मैडम के आने से पहले यहाँ से निकलना है, लेकिन उन्होंने मुझे शाम 5 बजे आने का वक्त दिया था, और अब तो 5:30 बज रहे हैं। उनका कहीं अता पता नहीं है। मेरे ख़्याल में आपको थोड़ा वो वेट कर लेना चाहिए, मैं आपको एक महफूज़ जगह पर ले जाऊँगी। नहीं, मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। अगर वो औरत आ गई तो आप नहीं जानती क्या हो जाएगा। मुझे बस यहाँ से निकलना है, उस औरत की पहुँच से दूर जाना है। वो उसकी बात काटते हुए बोली तो डॉक्टर ने हाँ में सर हिलाया, जैसे वो उसकी परेशानी को समझ रही हो। इस वक्त मैं बस आपकी इतनी मदद कर सकती हूँ। वो अपने हाथों में मौजूद कुछ नोट उसके हाथ में थमाते हुए बोली। आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपके पैसे वापस कर दूँगी। मेरे पास यहाँ से हॉस्टल जाने का किराया नहीं था, और मेरे लिए अपनी नौकरी खतरे में डालने के लिए भी मैं हमेशा आपकी मशकूर रहूँगी। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं यहाँ से सीधे अपने हॉस्टल जाऊँगी। वहाँ की वार्डन मुझे जानती है, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगी, और फ़िक्र ना करें, मैं कैसे भी दारम साईं से राब्ता कर लूँगी। वो बात ख़त्म करती वहाँ से निकल गई थी। आते हुए डॉक्टर ने उसे अपनी बड़ी सी शॉल दी थी, जो सर्दी से बचने के लिए काफ़ी थी। वो यहाँ से सीधी हॉस्टल जाना चाहती थी। अस्सलाम वालेकुम चाचू साईं, कैसे हैं आप? साहिर साईं कह रहा था कि आप मेडिसिन नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे आप मेडिसिन? आज बहुत दिनों के बाद उनके कमरे में आया था, जहाँ ज़रीन चाची पहले से मौजूद थी। वो मुस्कुराकर उनके पास आ बैठा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और जब तक आप ये मेडिसिन नहीं लेंगे आपकी तबीयत में सुधार कैसे आएगा? फिर आपको रोज़ डॉक्टर्स के चक्कर लगाना भी पसंद नहीं है, और अगर कोई डॉक्टर यहाँ आपको चेक करता है तब भी आप गुस्सा होते हैं, और अपना ख्याल आपने बिल्कुल रखना ही नहीं है। ऐसे कब तक चलेगा? वो उनके पास बैठते हुए उनकी मेडिसिन निकाल कर देने लगा, जबकि वो आंखों में आंसू लिए उसे देखे जा रहे थे। दारम साईं माफ़, बड़ी मुश्किल से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, जब दारम साईं ने उनके दोनों हाथ थाम लिए।
चाचू साईं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है और आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने वही किया जो एक बाप का फ़र्ज़ था, जो एक बाप होने के नाते आप कर सकते थे। वो आपकी बेटी नहीं बन सकी, वो बेटी होने का फ़र्ज़ अदा नहीं कर सकी। इसमें आपका क्या कसूर है? आप बिल्कुल बेगुनाह हैं और आपको किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी। आपकी बेटी ने जो भी किया वो शायद उसकी माँ की सिखाई हुई सीख थी। उस औरत ने ज़िंदगी से खुद जो सबक सीखा वही अपनी बेटी को सिखाया और मैंने ज़िंदगी के 15 साल उसके इंतज़ार में बर्बाद कर दिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फ़िक्र ना करें, आपकी बेटी की तरफ से तलाक का मुतालबा आ चुका है और अब मैं भी उसे आज़ाद करने का फ़ैसला कर चुका हूँ। हाँ, अब वो अगर मेरे साथ रहने का फ़ैसला कर भी ले ना, तब भी मैं उस जैसी औरत को अपनी ज़िंदगी में नहीं रखूँगा। हाँ, ऐसी बदकिरदार नहीं है चाची साईं, उसके किरदार का गवाह मैं खुद हूँ। खबरदार जो किसी ने दर को बदकिरदार कहा। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, बस बात ख़त्म। लेकिन वो बदकिरदार नहीं थी, ये बात याद रखें। वो जैसी भी थी, जो भी थी, उसका किरदार साफ़ था। पास खड़ी सेरीन बेगम जो कब से सरमद को दारम से बातें करने की कोशिश में हलकान होते देख रही थी, जब बोली, दारम से बर्दाश्त ना हुआ। हाँ हाँ, वो बदकिरदार नहीं थी, सिर्फ एक बॉयफ्रेंड ही तो था उसका। किसी के साथ आशिकी माशूकी ही तो चल रही थी, इसमें बुराई क्या है? लंदन की लड़कियों का तो ये पसंदीदा शौक होता है, एक अदद मंगेतर, एक शौहर, एक बॉयफ्रेंड रखना, वहाँ तो आम बात होती होगी। चची साईं, मत भूलिए बोले ऐसे अल्फाज जो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाए। बेहतर है कि चली जाए यहाँ से। मैं रिश्तों के तकद्दुस में एहतराम की कमी नहीं चाहता। अगर मैंने कह दिया कि मेरी बीवी बदकिरदार नहीं है तो वो नहीं है, याद रखें। क्योंकि समरा की तरबियत बदकिरदार हो सकती है, सरमद शाह का खून नहीं। उसका लहजा इतना तेज़ और सर्द था कि चच्ची एक सेकंड में मज़ीद वहाँ ना रुकी, बल्कि उसकी खून छलकती निगाहों से खौफज़दा होती तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई थी। जबकि वो चाचू साईं की जानिब मुतवज्जा हुआ, जो आंखों में आंसू लिए बड़ी मुश्किल से बैठे हुए थे। सर बैकग्राउंड से लगा हुआ था, बल्कि एक तरफ लटका हुआ था। चंद ही दिन में उनकी क्या हालत हो गई थी। काश उनकी ये हालत उनकी बेटी को दिखा पाता। वो काली चादर में छुपी बड़ी मुश्किल से हॉस्टल तक पहुंची थी। अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट उसने अपने हाथ में थाम रखी थी। हॉस्टल में वार्डन ने उसे पहली नज़र में ही पहचान लिया था। 6 महीने के बाद उसे अपनी आंखों के सामने देखते हुए वार्डन ने उसे अपने सीने से लगाया था। नूर, ये क्या हालत है तुम्हारी? तुमने अपने आप को छुपा के रखा है। तुम्हारे हाथ पर पट्टी क्यों बंधी हुई है मेरी जान? कुछ तो बताओ, ये सब क्या हो रहा है? वो उसे अपने साथ अपने कमरे में ले आई थी। दर ने भी मज़ीद उनसे कुछ नहीं छुपाया था। वो उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताने लगी। सब कुछ जानने के बाद वार्डन खुद भी बेहद परेशान थी। नूर, तुम परेशान मत हो। तुम्हारे मसले का बस एक ही हल है कि जल्द से जल्द तुम्हारे शौहर से राब्ता किया जाए। मुझे नंबर दो तुम्हारे शौहर का, मैं फ़ोन करती हूँ, उसे समझाते हुए बोली। तो नूर ने फ़ौरन ही दारम साईं का नंबर उन्हें दे दिया था। उसे नहीं पता था कि दारम फ़ोन उठाएगा भी या नहीं, बस इतना जानती थी कि दारम को जब ये सब खबर सुनाई गई तो बहुत खुश होगा। कितनी बार उसने खुद जिक्र किया था इस बात का कि पता नहीं उसके नसीब में बाबा साईं बनना कब होगा, और अब वो इतनी बड़ी खुशी को कैसे खुद तक महदूद रखे हुए थी। दूसरी तरफ से बेल जाने लगी तो नूर का दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। अब कभी भी दारम की आवाज़ आनी थी। एक बार फ़ोन लगा, किसी ने नहीं उठाया। दूसरी बार लगा, तब भी किसी ने नहीं उठाया। तीसरी बार उसे नींद में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी थी तो जैसे उसके तमाम असाब अलर्ट हो गए। वार्डन ने फ़ोन फ़ौरन उसके हवाले कर दिया था। दारम दारम साईं, मैं माँ बनने वाली हूँ। प्लीज़ अपने अपने बच्चे को बचा लें, इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए। साईं, आप सुन रहे हैं ना? मैं आपसे कह रही हूँ साईं, प्लीज़ आ जाएँ, प्लीज़ आ जाएँ, इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए। उसे दूसरी तरफ से दारम की सिर्फ सांसों की आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन वो जो बोलते चली गई। उसे कैसे भी अपनी बात उस तक पहुंचानी थी, जबकि दूसरी तरफ से वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस खामोशी से सुन रहा था। सुन भी रहा था या नहीं, वो नहीं जानती थी। इससे पहले कि वो और कुछ भी कहती, अचानक दरवाज़ा खुला। बीन के साथ माइक का मकरू चेहरा देखकर उसके हाथों से फ़ोन छूट कर ज़मीन पर गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया। डार्लिंग, मैं तुम्हें हॉस्पिटल में ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ छुप कर बैठी हुई हो अपनी वार्डन के साथ। अपनी ना से अपनी वार्डन की ज़िंदगी की परवाह कर लेती। वो इंग्लिश में कहता, आराम से वार्डन वाली जगह पर बैठा तो नूर उठकर खड़ी हो गई, लेकिन वो खामोश नहीं हुआ था, बल्कि मज़ीद मकरू मुस्कुराहट के साथ बोला, चलो तुम्हें अपना एहसास नहीं है तो कम अज़ कम इसके बारे में तो सोचती। इसकी तो 3 बेटियां हैं मेरे ख्याल से, और इसका हस्बैंड भी इसे तलाक दे चुका है। देखो ना, इनके यहाँ आने से पहले मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, क्योंकि मैं जानता था नूर कभी भी गई तो यहीं पर जाएगी, क्योंकि इसकी शायद और कोई मंजिल ही नहीं। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या करना है? नूर का साथ देते हुए मौत को गले लगाना पसंद करना है, या अपनी बेटियों के फ्यूचर के लिए कुछ बेहतर सोचोगी? बीन बंदूक की नोक उसके माथे पर रखते हुए उसे धमका रहा था, जबकि नूर बिल्कुल खामोश खड़ी उन्हें देख रही थी। तुम्हें जो भी कहना है मुझसे कहो, इन्हें छोड़ दो, इनका कोई कसूर नहीं है। मैं आई थी यहाँ, सारी गलती मेरी है। तुमने जो भी कहना है मुझसे कहो, वो बेकसूर है। वो तो जानती भी नहीं थी कि मैं यहाँ आने वाली हूँ। अपनी वजह से इस औरत को फंसा देखकर नूर खुद ही बोल उठी थी। उसने गलती की थी, उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। उसकी माँ जानती थी कि नूर का और कोई ठिकाना नहीं है। अगर वो कभी भी कहीं पर गई तो अपने हॉस्टल ही जाएगी।
اور وہ کسی جگہ جاتی ہی نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی دوست تھی۔ بچپن سے اسی ہاسٹل میں رہتی آئی تھی اور آگے بھی اس نے اسی ہاسٹل میں ہی زندگی گزارنی تھی۔ یہ تو اس کا نصیب تھا جس نے اسے پاکستان پہنچا دیا اور اتنی محبت کرنے والا شوہر اور چاہنے والا خاندان دے دیا۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نور ڈارلنگ، اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے تو کیوں اس کی جان مشکل میں ڈالیں؟ لیکن تم نہیں جانتی تمہاری مدد کرنے والوں کا کیا حال ہوگا۔ دیکھو میں برا انسان نہیں ہوں اور میں بھی ایک اچھا انسان ہوں اور ایک اچھی لائف پارٹنر چاہتا ہوں، بالکل تمہاری طرح۔ اس میں غلط کیا ہے؟ اگر تمہیں دیکھتے ہی مجھے تم سے محبت ہوگی تو کیا غلط ہے؟ شادی کرنا چاہتا ہوں، کیوں بھاگ رہی ہو مجھ سے؟ میں تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، یہاں تک کہ تمہارا مذہب قبول کروں گا، تم سے شادی نہیں نکاح کروں گا، تمہارے پورے اسلامک کلچر کے حساب سے ایکسیپٹ کروں گا، لیکن نہیں، تمہیں میرا نہیں اس جاہل دارمشاہ کا ساتھ چاہیے اور ایسا میں ہونے نہیں دوں گا کیونکہ تم صرف میری ہو۔ ارے کروڑوں کا خرچہ کیا ہے تمہارے لیے، پوچھو تمہارے اسٹیپ فادر سے کتنی دولت لٹائی ہے میں نے ان دونوں پر تمہارے نام پر، اور تم مجھ سے بھاگ رہی ہو۔ دیکھو نور، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، اب تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا جب اسے نور کے ہاتھ میں کاغذ نظر آیا جو شاید وہ اسے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ وہ آسانی سے اس کے ہاتھ سے وہ کھینچ چکا تھا، در کی بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اسے محفوظ نہیں رکھ پائی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کھولتے ہوئے پڑھنے لگا جس پر لکھی ہوئی تحریر نے بین کو غصہ دلا دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم پریگننٹ ہو؟ کیا تم دارمشاہ کے بچے کی ماں بننے والی ہو؟ نور، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، تم صرف میری ہو، دنیا کی کوئی طاقت میرا ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اب سے تمہارا دارمشاہ سے کوئی تعلق نہیں اور اس تعلق کو میں ابھی ختم کر دوں گا۔ اگر تم اس عورت کی جان بچانا چاہتی ہو تو تمہیں اس بچے کو ختم کرنا ہوگا، یا تو یہ عورت مرے گی یا تمہارے اندر پلنے والا بچہ۔ جلدی فیصلہ کرو، تمہارے پاس صرف اور صرف 5 منٹ کا وقت ہے۔ میں مائک نہیں ہوں جو اپنی بیوی کے پہلے شوہر کے بچے پالتا رہوں گا۔ مجھے صرف اور صرف تمہاری خوبصورتی سے غرض ہے، جلدی فیصلہ کرو، یہ بچہ یا پھر یہ عورت۔ وہ ضد پر اڑا ایک ہی بات بار بار دہرا رہا تھا جبکہ در مسلسل یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنی کوکھ میں پلنے والے اس معصوم جان کو بچانے کی کوشش کرے جو اس کی اور دارم کی خوشیوں کی وجہ تھی، یا پھر اس عورت کو بچائے جن کی 3 بیٹیاں جوانی کی دہلیز پر کھڑی تھیں۔ پلیز مام، میرے ساتھ ایسا نہ کریں، میں آپ کی اولاد ہوں، آپ مجھ سے میری اولاد چھیننے کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہیں؟ اس انسان کے لیے جو آپ کو ٹھیک سے اپنا بھی نہیں سکا، آپ اپنی اولاد کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ خدا کے لیے مجھ سے میرا بچہ نہ چھینیں، مجھے اس بچے کی ضرورت ہے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے مجھے میرے بچے سے دور نہ کریں۔ میں نے آپ سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں مانگا، آج مانگتی ہوں، خدا کے لیے میرے بچے کو بچا لیں۔ بین کی بات مان کر اپنے وارڈن کی زندگی بچانے کی خاطر وہ اس کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی جہاں پر سمرہ بے چینی سے ان کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسے اس کے پاس چھوڑ کر بس اتنا کہہ کر چلا گیا تھا کہ 2 دن کے بعد اس کی اپائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر کے پاس، وہ اس کا ابارشن کرے گی، جس کے ساتھ دارمشاہ کا بچہ ہی نہیں بلکہ دارمشاہ کا سایہ بھی اس کی زندگی سے ختم ہو جائے گا، اور اس پر اب بھی دباؤ تھا کہ وہ دارمشاہ سے دوبارہ طلاق کا مطالبہ کرے۔ ایک بار دارم کی آدھی ادھوری بات سن کر جہاں اس کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا وہیں وہ اس سے دوبارہ بات کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دارم نے اس کی بات سنی بھی تھی یا نہیں، وہ جانتا بھی تھا یا نہیں جانتا تھا اپنی اولاد کے بارے میں، لیکن نور اس سے دوبارہ بات کرنے کی ہمت خود میں پیدا ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، صرف دکھاوا کر رہی تھی، جبکہ اسے یقین تھا وہ دارم کو سب بتا دے گی، سب سمجھا لے گی، تب کتنا آسان تھا یہ سب کچھ کرنا۔ اور اب جب وہ دارم سے اتنی دور تھی، جب وہ چاہ کر بھی اسے کچھ سچ نہیں بتا پا رہی تھی، تب یہ سب کچھ مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ اب یہ کوئی جھوٹ نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ پل پل وہ اس خوف کے ساتھ جی رہی تھی کہ کبھی بھی دارم کا نام اس کے نام سے الگ ہو جائے گا۔ اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس خود غرض بے حس ماں کی منتیں ترلے کرنے لگی۔ نور، میں تمہیں ایک ہی بار کتنی بار سمجھاؤں، کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ نہ تو یہ بچہ تمہاری منزل ہے اور نہ ہی دارمشاہ۔ اگر تم زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتی ہو، کچھ بننا چاہتی ہو، اپنا مقام بنانا چاہتی ہو، ایک سٹینڈرڈ بنانا چاہتی ہو تو تمہیں قربانیاں دینی ہوں گی، تمہیں سیکریفائسز کرنا ہوگا۔ نہیں کرنا مجھے کوئی بھی سیکریفائس، نہیں دینی مجھے قربانیاں، کوئی سٹینڈرڈ نہیں چاہیے مجھے، کوئی مقام نہیں بنانا میں نے زندگی میں، کچھ بھی حاصل نہیں کرنا سوائے دارمشاہ کے نام کے۔ وہ غصے سے کہتی بے قابو ہونے لگی تھی۔ تو کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ دارمشاہ کے بچے پیدا کر کے ساری زندگی جاہل عورتوں کی طرح گزارنا چاہتی ہو تم؟ وہ چلا اٹھی تھی۔ ہاں، انہیں چاہیے مجھے دولت، ہاں نہیں چاہیے مجھے دولت، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف اور صرف دارمشاہ کا نام چاہیے۔ ہاں، ساری زندگی اس کے بچے پیدا کروں گی، اس کی غلامی کروں گی، کیونکہ دارمشاہ جیسے انسان کی بیوی بننا بین ڈیوڈ جیسے بغیرت کی گرل فرینڈ بننے سے بہتر ہے۔ وہ لحاظ کیے بنا بولی، وہ بھی تمہیں بیوی بنانا چاہتا ہے، یہ بات تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی؟ سمرہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے، اسے سمجھا کر تھک چکی تھی لیکن اس کی کوئی بھی بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں کسی غیر مذہبی سے نکاح کر کے اپنا ایمان خراب نہیں کر سکتی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ اسلام قبول کرے گا، تم سے نکاح کرے گا، کیوں نہیں سمجھ رہی ہو تم نور؟ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ وہ تمہارے لیے تمہارا دین قبول کر رہا ہے، بیوقوف لڑکی۔
और तुम एक ही चीज़ की रट लगा के रखे हुए हो। अब उसे गुस्सा आने लगा था। मैं ऐसे दीनदार को नहीं मानती जो अल्लाह को छोड़कर किसी इंसान के लिए मुसलमान हो। ना ही मेरी नज़र में ऐसे निकाह कोई अहमियत रखता है, क्योंकि असल मुसलमान अल्लाह के लिए हुआ जाता है, किसी इंसान के लिए नहीं। मैं अपने एक ही निकाह को मानती हूँ जो दारमशाह के साथ हुआ है। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, और उससे मोहब्बत करने की एक और वजह यह है कि उसने मुझे खुदा के करीब किया है। उसने मुझे मुसलमान होने का मतलब समझाया है, और आप मेरे लिए किसी को मुसलमान कर रही हैं, लेकिन मैं भी ये सारी बातें बता किसको रही हूँ? आपको तो आप तो कभी इन सब बातों का मतलब समझेंगी नहीं। आप जानती हैं निकाह का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से वफ़ा निभाना, एक दूसरे को सही और गलत का मतलब समझाना, और वफ़ा को निभाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके दिलो दिमाग में अपने महरम के अलावा कोई दूसरा ना आए। लेकिन मेरी इस बात का मतलब भी आप नहीं समझेंगी। एक शख्स के निकाह में होते हुए आपने दूसरे के साथ ताल्लुक़ जोड़कर अपने निकाह की तौहीन की थी। आप जानती हैं मज़हब किसे कहते हैं? मज़हब का मतलब आपको बीन नहीं बता पाएगा, जो सिर्फ़ मेरे साथ ताल्लुक़ जोड़ने के लिए मेरे मज़हब से ताल्लुक़ जोड़ रहा है। अगर आपको मज़हब के बारे में जानना है ना, तो दारम शाह से सीखें। बीन मुझसे निकाह तो करना चाहता है, लेकिन पहले इस निकाह का मतलब समझे। दारम शाह से पूछे निकाह क्या है, जिसने जवानी की दहलीज पर कदम रखते हुए भी अपनी मनकूहा के साथ दगाबाजी नहीं की, बिना मुझसे मिले, बिना मुझे देखे, मुझसे जुड़े ताल्लुक़ को निभाया है। और मैं उसके निकाह में जुड़ी हुई औरत हूँ। दुनिया की कोई ताकत मुझे भटका नहीं सकती, क्योंकि निकाह में जुड़े हुए लोग कभी भटकते नहीं। मर्द भटक भी जाए, औरत मजबूत रहती है। अरे मर्द तो मर्द होता है, लेकिन एक पाक दामन, एक अच्छी औरत कभी गलत नहीं अपनाती। वैसे आप भी औरत थी, कहते हैं वफादार औरत कभी भटकती नहीं, लेकिन मर्द भटक जाता है, वो अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है। खैर, यहाँ आपकी बात नहीं हो रही, दारमशाह की बात हो रही है, और दारमशाह उन मर्दों में से नहीं है जो भटक जाए। और अब चाहती हैं कि मैं उस इंसान को धोखा दूँ, तो माफ़ कीजिएगा समरा मैडम, मैं आपकी तरबियत नहीं, अपने बाबा का खून प्यारा है। मेरे बाबा साईं के खून में धोखा नहीं है, और मैं अपने शौहर को कभी धोखा नहीं दूँगी। याद रखिएगा, मरते दम तक भी मेरे दिल में दारमशाह ही रहेगा। बेशक आपकी साजिशें कामयाब हो जाएँ, लेकिन दारमशाह की जगह कोई नहीं ले सकता। वो मेरी मोहब्बत नहीं, मेरा इश्क है, और इश्क हर हद से बढ़कर होता है। उसकी कोई हद नहीं होती, और मेरी यह हद कोई बीन डेविड नहीं तोड़ सकता। दारमशाह के अलावा इस दिल में और कोई नहीं आ सकता। बता दीजिएगा उस आदमी को कि अगर उसने दारमशाह से अलग कर भी दिया, तब भी वो मुझे कभी नहीं हासिल कर पाएगा, क्योंकि जिस दिन दारमशाह का नाम मेरे नाम से अलग हुआ, उस दिन दरनूर मर जाएगी। वो अपना आप ख़त्म कर देगी, लेकिन दारमशाह का नाम खुद से अलग नहीं होने देगी। उसकी आंखों में आंखें डाले वो चैलेंज करती वहीं से सीधी ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई थी, और फिर समरा की तरह हज़ार बुलाने के बाद भी वो बाहर ना निकली थी। बोलो कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, और इस हवेली में आने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? एक बंद कमरे में बिल्कुल सुनसान जगह पर रखी एक इकलौती कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके हाथ कुर्सी की पूंछ से बंधे हुए थे, जबकि सामने खड़ा शख्स मुसलसल उससे सवाल कर रहा था। साईं, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं आपके घर की मुलाजमा हूँ। बस मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए चोरी करने की नीयत से साहिर साईं के कमरे में गई थी। चिट्टा वो भी बोल ही रही थी कि साथ खड़ी लड़की ने एक ज़ोरदार थप्पड़ पूरी शिद्दत से उसके मुंह पर दे मारा था। उसके होंठों से खून बहने लगा था, जबकि सामने खड़ा शख्स सिर्फ उसी को देख रहा था। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। मैं अपना सवाल एक बार फिर से दोहराता हूँ, तुम साहिर शाह के कमरे में क्यों गई थी? इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये बताओ कि तुम इस घर में क्यों आई हो? इस हवेली में आने के पीछे क्या राज छुपा है? कौन सा मकसद लेकर तुम यहाँ आई हो? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? उसने फिर से अपना सवाल दोहराया था। साईं जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं सिर्फ चोरी की नीयत से गई थी और यहाँ काम करने के लिए आई थी। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। पेशावर में मेरा घर है, मेरी 6 बहनें हैं, यतीम हूँ, बाई नहीं सर पे। बेआसरा बेसहारा हूँ, नौकरी की तलाश में आई थी और यहाँ हवेली काम की तलाश में ही पहुँची थी, और मुझे यहाँ नौकरी मिल गई। गलती हो गई मुझसे, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, बस मुझे एक बार जाने दें। वो बुरी तरह से रोते हुए बोल रही थी, जबकि सामने खड़ी लड़की को उसके आंसू पर बिल्कुल एतबार नहीं था। सर, ये लड़की झूठ बोल रही है, क्योंकि इस लड़की का किसी से राब्ता था, और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि जिस बंदे के साथ इसका राब्ता था, वो बंदा अपनी सिम नहीं इस्तेमाल कर रहा, बल्कि वो एक आम से मुल्क के रिहायशी का नंबर इस्तेमाल कर रहा है, जिसका नाम अज़मत है। मैं खुद अज़मत से मिली हूँ। अज़मत का कहना है कि 2 महीने पहले उसके साथ एक डकैती हुई थी, जिसमें उसका मोबाइल फ़ोन और पैसे वगैरह छीन लिए गए थे, और इसके साथ उसका शनाख्ती कार्ड भी चोरी हो गया था, और ये आदमी अज़मत का शनाख्ती कार्ड इसीलिए चुरा कर लेकर गया था ताकि वो सिम बंद ना करवा सके। जब तक अज़मत ने नया शनाख्ती कार्ड बनवाया, तब तक वो आदमी ये नंबर इस्तेमाल करता रहा, और फिर शायद अब वो किसी और के नंबर से इसके साथ राब्ते में है। मतलब कि सर, वो इस सारे काम करके किसी न किसी का नंबर इस्तेमाल करता है, ताकि उसका अपना नाम कहीं पर भी ना आए। इस नंबर को जब हमने आखिरी बार ट्रेस किया, तभी हवेली के आसपास ही सर्च हो रहा था, और फिर ये नंबर बंद हो गया। उसके बाद इसे ट्रेस करना तो मुश्किल हुआ ही, लेकिन इस आदमी ने अपना नंबर भी बदल लिया, और यकीनन अब कोई और मासूम शहरी इसके हाथ चढ़ा होगा। पलवशा को इसी हालत में छोड़कर बाहर की जानब भाग गए थे।
फिक्र मत करो, इस गैंग को हम जल्द ही पकड़ लेंगे, लेकिन इस लड़की को हाथ से जाने मत देना। इसकी शक्ल पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, अंदर से बहुत तेज़ है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये लड़की हमारी बहुत मदद कर सकती है। बस इसे कैसे भी बना लो। फ़िलहाल मैं चलता हूँ, ख्याल रखना इस लड़की का। यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए, बहुत तेज़ है, कभी भी कोई भी कदम डाल सकती है। सर, अगर ये तेज़ है तो आपकी टीम भी किसी से कम नहीं। बेफ़िक्र होकर ये ज़िम्मेदारी आप मेरे कंधों पर डाल दें, इसे मैं खुद सँभाल लूँगी। वो मुस्कुराकर उससे कहती वहीं से उसकी जानिब चली गई थी, जबकि वो खामोशी से हवेली की जानिब बढ़ गया था। साहिर सईं, कहाँ चले गए थे आप? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। उसे अभी तक मेडिसिन भी नहीं ली है। आपको पता है, जब आप मेडिसिन नहीं लेते तब आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अभी तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हैं, लेकिन आपको कौन समझाए। चलिए अंदर चलिए, मैं आपको अभी मेडिसिन देती हूँ। वो उसका हाथ थाम कर उसे अंदर लेकर जाने लगी। ना जाने कब से वो सोफ़े पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो बस चहलकदमी करते करते आगे निकल गया। वहाँ से एक दोस्त मिल गया तो उसके पास थोड़ी देर बैठ गया। अब आ गया हूँ, और ये जब भी मैं वापस आता हूँ तो इन सड़ी हुई दवाइयों का नाम क्यों लेती हो? कभी ये भी कह दिया करो कि मैं आपका इंतज़ार कर रही थी क्योंकि मैं आपको मिस कर रही थी। लेकिन नहीं, तुम तो दिल जलाने में माहिर हो, जलाती रहो। इतने कड़वे तो तुम्हारे हाथ के करेले नहीं लगते थे जितनी दवाइयाँ लगती हैं। वो उसके साथ आता बड़ी मायूसी से बोल रहा था, जबकि जाविश मुस्कुराए जा रही थी। सुनो, कब कहोगी कि तुम मुझे मिस करती हो? मैं जल्दी घर आ जाया करूँ? वो उसके साथ चलता शरारत से बोला था। 26 दिन के बाद वो मुस्कुराते हुए बोली, या खुदा, ये 26 दिन का सत्यानाश कब ख़त्म होगा? सत्यानाश नहीं साहिर साईं, वो सिन्यास है। उससे फिर से बोला, मेरे लिए सत्यानाश ही है। वो भी उसी के अंदाज में बोला, जबकि कमरे में आने के बाद जाविश ने उसे मज़ीद फ्री होने की मज़ीद बिल्कुल फ्री नहीं होने दिया था। वो जल्दी से उसकी मेडिसिन निकालते उसे देने लगी, जिसमें सबसे अहम चीज़ उसकी नींद की गोली थी। या ये ज़रूरी है क्या? मैं कौन सा तुम्हें रात को तंग करता हूँ? उसकी वजह से रोज़ फजर कज़ा हो जाती है मेरी। वो अजीब से मुँह बनाते हुए बोला था, ज़रूरी है तभी तो देती हूँ, और आप फ़िक्र ना करें, मैं आपको फजर में जगा दूँगी। आप फ़िलहाल आराम करें। उसके पास बैठते हुए बोली, अच्छा मैं आराम करूँ तो तुम क्या करोगी? वो उसकी गोद में सरकते हुए बोला तो जाविश का नावल की तरफ चाहता हाथ रुक गया था। कुछ नहीं, मैं आपके पास बैठूँगी, ये नॉवल रीड करूँगी। थोड़ी देर के बाद मैं भी सो जाऊँगी। छोड़ो, आज ये किताबें मत पढ़ो, और तुम मुझे पढ़ो। वो उसके दोनों हाथ थाम कर अपने सीने पर रखता आंखें बंद कर चुका था। चेहरे पर एक पुरसुकून सी मुस्कुराहट थी। जाविश भी मुस्कुरा दी। थोड़ी देर के बाद उसके हल्के हल्के खर्राटों की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी तो उसने मुस्कुराते हुए उसकी पेशानी पर अपने लब रखे थे। उसके लबों का लम्स अपने माथे पर महसूस करते हुए साहिर ने अपनी नींद से भरी आंखें खोलकर उसे देखा और फिर मुस्कुराकर दोबारा आंखें बंद कर गया, जबकि जाविश ने बेइख्तियार अपना बेतरतीब होता दिल थामा। वो अलग था, पता नहीं चलता था कब सो रहा है, कब जाग रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर खुल रहा था और उसे समझने की कोशिश कर रही थी। देखो, तुम्हें तुम्हारी मुँह मांगी रकम मिलेगी, लेकिन इस बच्चे का नामो निशान नहीं रहना चाहिए। मैं जानती हूँ ये इलीगल काम है और इसमें तुम्हारी नौकरी को भी खतरा हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें इस काम की मुँह मांगी कीमत दे रही हूँ। समरा उसे अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर आई थी। लेकिन मैम, शायद ये ऐसा नहीं चाहती। वो हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही। लगता है हमें उसे बेहोश करना होगा, तभी जाकर इस मसले का कोई हल निकल पाएगा, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही। अगर उसे चीखना चिल्लाना ना छोड़ा तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। वो उसे अपने साथ उसी कमरे में लेकर आई थी जहाँ वो थोड़ी देर पहले दर को छोड़ कर गई थी। प्लीज़ मॉम, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। ये बच्चा बहुत अहम है, इसे बचा लें। आप इसे बचा सकती हैं। प्लीज़ आप मुझे समझने की कोशिश करें। आप मेरी माँ हैं, आपने मुझे जन्म दिया है, तो आप मेरे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको दौलत चाहिए ना, मैं अपना सब कुछ दूँगी आपको, लेकिन खुदा के लिए मेरे बच्चे को कुछ मत करें। देखें, ये बच्चा दारमसाई और मेरी मोहब्बत की निशानी है। प्लीज़ इसे मुझसे अलग मत करें। आप चाहती हैं ना मैं दारमसाई से तलाक ले लूँ? मैं वादा करती हूँ मैं उन्हें छोड़ दूँगी। कभी ज़िंदगी में उनसे बात नहीं करूँगी, उनके पास नहीं जाऊँगी। मैं उनसे हर ताल्लुक़ ख़त्म कर दूँगी। मैं खुद उनसे तलाक माँगूँगी, लेकिन खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचा लें। आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं अपना सब कुछ आपके नाम कर दूँगी। नहीं, खुदा के लिए मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। सच में मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। सच में उसके पैर पकड़ चुकी थी, जबकि समरा पर तो इस वक्त किसी और ही चीज़ का भूत सवार था। वो ज़बरदस्ती नर्स और डॉक्टर के साथ मिलकर उसे बेड की तरफ घसीटने लगी। शायद कि वो भूल चुकी थी कि वो उसकी माँ है। वो इस वक्त इतनी ज़ालिम बन चुकी थी कि उसकी चीखें बंद करने के लिए उसके मुंह पर उसका ही दुपट्टा बांधने की कोशिश करने लगी, जबकि डॉक्टर बेहोशी का इंजेक्शन तैयार कर रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो कोई और कार्रवाई करती, टिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला था और सामने खड़े शख्स को देखकर समरा का वजूद साकत रह गया था। वो हैरानगी से दरवाजे पर खड़े शख्स को देख रही थी, जहाँ खड़ा शख्स कभी उस डॉक्टर के हाथ में मौजूद इंजेक्शन देखता और कभी समरा को। उसके बदन पर मौजूद कॉटन का सफ़ेद सूट उसे किसी रियासत का शहज़ादा बना रहा था। दर्द तो इतने दिनों के बाद उसे देखती ही रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके सामने खड़ा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका महरम है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या उसे देखकर इतना रोए कि आज हर हद पार कर दे। तो क्या वो उसके लिए आया था? क्या उस रात उसने उसकी कॉल सुन ली थी? हाँ, तभी तो यहाँ आया था।
दारम साईं वो पूरी शिद्दत से अपना हाथ समरा के हाथ से निकालती उससे पीछे की जानब धक्का देते हुए दारम की जानब भागी थी। वो नहीं जानती थी उसकी उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। अगर कुछ पता था तो सिर्फ इतना कि उसका मुहाफिज उसे बचाने के लिए आ गया है। दारम साईं हमारा बच्चा, ये हमारे बच्चे को मारना चाहते हैं, हमसे हमारा बच्चा छीनना चाहते हैं। दारम साईं प्लीज़ बचा लें हमारे बच्चे को, ये लोग बहुत बेहिस हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सिर्फ चंद दिन का है, वो उसे ख़त्म कर देना चाहते हैं। वो दारम के करीब आते हुए उसके सीने से आ लगी थी और अब उसके सीने से लगी फूट फूट कर रोते हुए अपना दर्द उसके सीने में उतार रही थी, जबकि वो खामोश खड़ा सामने खड़े लोगों को देख रहा था जिनकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। नूर, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? ये क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया है तुमने? क्या तुम भूल रही हो कि तुम दारमशाह से तलाक लेने वाली हो? ओह, अब समझ में आया मुझे, तुम ये सब कुछ तो दौलत के लिए कर रही हो। मैं तो तुम्हें एक छोटा सा मोहरा समझती थी, लेकिन तुम तो खुद पूरा का पूरा खेल हो। मैं तो तुम्हें सदमत शाह की दौलत के लिए इस्तेमाल किया और अब तुम इस बच्चे को दारमशाह की दौलत के लिए इस्तेमाल करोगी। स्मार्ट, तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी बेटी हो। समरा की जहर आलूद आवाज़ उसकी समाअतों से टकराई थी, लेकिन शायद इस वक्त वो और किसी की सुनना ही नहीं चाहती थी। इस वक्त उसके कान दारमशाह के दिल के करीब थे और वो उसके अलावा दुनिया की कोई आवाज़ नहीं सुनना चाहती थी। वो नहीं सुनना चाहती थी अपनी माँ की मतलब बरी आवाज़। वो नहीं जानती थी कि वो उसके बारे में क्या कह रही है। उसे सिर्फ़ और सिर्फ दारम से मतलब था, जो सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए यहाँ आया था। जबकि समरा अब भी बोल रही थी और न जाने क्या क्या बोल रही थी। दारमशाह, कि तुम इतने बेवकूफ़ है कि अब तक इस लड़की के प्यार में पागल हो जो तुम्हें धोखा देकर आई है। क्या तुम्हें नहीं पता कि किससे मोहब्बत करती है? इसका ताल्लुक बीन से है और ये बीन से शादी करने वाली है। तुमसे पहले ये बीन से मोहब्बत करती थी और बीन के साथ मिलकर ही तो इसने तुम्हारे साथ ये गेम खेला था। इसे सिर्फ़ और सिर्फ दौलत चाहिए, वरना बीन के साथ इसके इतने गहरे ताल्लुकात हैं कि तुम चट्टाख। वो न जाने क्या क्या बोल रही थी जब दारम ने दर को उसके बाजू से पकड़ कर एक साइड पर किया और अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करके इस औरत के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा लगा दिया, बिना उसकी उम्र का लिहाज किए। थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि वो लम्हे में ज़मीन बोस हुई। अपने साथ होने वाली इस कार्रवाई पर वो खुद भी हैरान हो चुकी थी। वो इसमें इतनी हिम्मत भी ना रही थी कि वो उठकर खड़े होते हुए इस शख्स के मुकाबिल खड़ी हो सके। उसने कभी दारम को आमने सामने देखा नहीं था, लेकिन वो असगर शाह की मुकम्मल कॉपी लग रहा था। हाँ, लेकिन असगर शाह से ज़्यादा रूबदार, उससे ज़्यादा पुरकशिश। अपने मुंह पर हाथ रख के उस शख्स को देखे जा रही थी जब अपने पंचों के बल उसके करीब बैठते हुए नफरत से उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, खबरदार, खबरदार, जो मेरी बीवी के किरदार के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहा। वो दारम शाह की बीवी है और जब तक वो दारम शाह की बीवी रहेगी वो कभी मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकती, याद रखना। क्योंकि मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। वो मुझसे मोहब्बत करे या ना करे, लेकिन वो कभी मेरे साथ धोखेबाजी नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ वो मुझसे प्यार नहीं करती, मैं जानता हूँ मेरे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन वो कितनी पाक दामन है इसका गवाह मैं हूँ। खबरदार, जो किसी ने मेरी बीवी के किरदार पर उंगली उठाई, हाथ कंधे से अलग कर दूंगा। उसके पेट में मेरा बच्चा है। तुम्हें किसने हक दिया मेरे बच्चे को कत्ल करने का? किसकी इजाज़त से तुमने एक कदम उठाया? और ये डॉक्टर, ये आज के बाद डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं रहेगी, क्योंकि इसके इस कारनामे के बारे में पूरा हॉस्पिटल जान चुका है। और ये भी कि इससे पहले इसने कितने केस अपने हाथों में लिए हैं। इसका काम तो आज ही हो जाएगा। वो झटके पर झटके दे रहा था। डॉक्टर का दिल चाहा कि वो यहीं फूट फूट कर रोना शुरू कर दे। इस डॉक्टर का तो अब अल्लाह ही हाफिज़ था, और किसी की मर्ज़ी के खिलाफ उसका अबॉर्शन करवाना भी एक गुनाह है, जिसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। बस के करीब से उठता हुआ एक नज़र दर की जानब देखता दरवाजे की तरफ बढ़ा था। कुछ नहीं होगा मुझे, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ दारमशाह। समरा नाम है मेरा और कोई भी कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माइक और बीन मुझे कुछ नहीं होने देंगे। वो उठकर खड़ी होती हुई पूरा कॉन्फिडेंस से बोली। दारम ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी। तुम्हारा बेन स्मगलिंग के केस में इस वक्त जेल में है और तुम्हारा शौहर स्मगलिंग के कामों में उसका साथ देने पर पुलिस की नज़रों में है। फ़िलहाल तो तुम्हें इस हॉस्पिटल में छोड़कर पता नहीं कहाँ भाग चुका है, लेकिन पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जल्द ही मिल जाएगा, और वो भी तुम्हें सलाखों के पीछे ही मिलेगा, क्योंकि दारम शाह कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलता। अगली दफ़ा पंगा लेने से पहले ठीक से सोच समझ लेना कि किसके साथ दुश्मनी मोल ले रही हो। अगर तुम्हें ये लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। दर जब से यहाँ आई है, मैं मसलसल तुम लोगों के एक एक मोमेंट पर नज़र रखे हुए हूँ। तुम क्या करते हो, कब करते हो, किस तरह, कब कब कहाँ जाते हो, हर चीज़ पर नज़र होती है मेरी। ये तुम्हारी सोच है कि तुम मुझसे छुप कर बैठे हुए हो। पुलिस बाहर खड़ी है और तुम्हारी अगली मंजिल पुलिस स्टेशन है। चलो आओ उधर, 12 बजे की फ़्लाइट से हमें पाकिस्तान जाना है। वो उसे मुखातिब करता तेज़ी से बाहर निकला था, जबकि वो अपने आंसू साफ़ करती एक नज़र अपनी माँ की आंखों में देखती सर उठाकर अपने दुपट्टे की जानब गई। बेड से अपना दुपट्टा उठाया, ठीक से लिया और उसके पीछे भाग गई। तुम्हें कुछ चाहिए? उसे गाड़ी में बैठने का इशारा करते हुए दारम ने पूछा, तो वो बिना कोई जवाब दिए फ़ौरन ना में सर हिलाती गाड़ी में बैठी। हम कब तक पाकिस्तान पहुंच जाएंगे तारम साईं? मैं वापस कभी यहाँ नहीं आऊँगी, कभी भी नहीं। ये मुल्क सिर्फ तकलीफ़ देता है, मैं ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आऊँगी।
मैं अब सारी ज़िंदगी आपके पास रहूँगी, वहीं पर अपने बाबा साईं के पास। मुझे नहीं जाना कहीं पर भी, मैं हमेशा हमेशा आपके पास रहना चाहती हूँ। आप कभी मुझे खुद से अलग मत कीजिएगा। मुझे यकीन था आप मुझे लेने के लिए ज़रूर आएँगे, और देखिए मेरा यकीन आपको यहाँ मेरे पास खींच लाया। अगर आज मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं कभी ज़िंदगी में अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती। मुझे नहीं पता था कि आपने फ़ोन पर कुछ सुना भी या नहीं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि उसने आपको मेरे लिए यहाँ भेज दिया, वरना आज हमारा इतना बड़ा नुकसान हो जाता जिसकी भरपाई हम ज़िंदगी भर नहीं कर पाते। उसके कंधे पर सर रखे वो आंसू बहाते हुए बोल रही थी, जबकि दारम बिल्कुल खामोशी से उसे सुन रहा था। जब अचानक उसका फ़ोन बजा। हाँ इंस्पेक्टर, बोलो, कोई खबर मिली? उस माइक की, वो जहाँ भी है उसे पकड़ो, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। बस वो आदमी मुझे जेल की चार दीवारियों के पीछे चाहिए। वो अपनी गाड़ी इसी तरह चलाते हुए दूसरे हाथ से फ़ोन पर बातें करने में मसरूफ़ था। सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम जल्दी उसे पकड़ लेंगे, आप फिक्र ना करें। आप आज 12 बजे की फ़्लाइट से यहाँ पाकिस्तान रवाना होने वाले हैं। इंशाल्लाह आपकी फ़्लाइट लैंड होने से पहले हम आपको गुड न्यूज़ सुनाएंगे। वो मुकम्मल खुशामदी अंदाज में बोला था। ठीक है, देखता हूँ कितनी खुशखबरी सुनाती हो तुम। खैर, याद रखना, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। उसके खुशामदी अंदाज पर गौर किए बिना बोला तो इंस्पेक्टर खामोशी से ओके सर कहता फ़ोन रख चुका था, जबकि दर भी खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। एयरपोर्ट के बाहर आकर गाड़ी रुकी तो उसने किसी और को फ़ोन किया। न जाने वो उससे बात क्यों नहीं कर रहा था, शायद नाराज़ था, उसे इग्नोर कर रहा था। हाँ राशिद, मैं गाड़ी यहीं एयरपोर्ट के बाहर छोड़ कर जा रहा हूँ, तुम यहाँ से ले जाना। वो टिकट्स और ज़रूरी कागजात निकालता हुआ दर को इशारा करके गाड़ी से निकला। वो भी इसके साथ ही बाहर निकलती हुई एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गई थी। उसका हाथ थामे हुए वो उसे अपने साथ ले आए तो वो बिल्कुल खामोशी से उसके साथ चलते हुए अब शायद अपनी खुशियों का सफ़र शुरू करने जा रही थी। दारम साईं, आप इतने खामोश क्यों हैं? क्या हुआ? क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका हाथ थामते हुए उससे सवाल कर रही थी, जबकि दारम आंखें बंद किए सीट के साथ टेक लगाए न जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था। चचा साईं को फालिज का अटैक हुआ है। वो ज़िंदगी में कभी भी खुद से कुछ बोल नहीं सकते, और ना ही शायद वो कभी चल फिर पाएंगे। वो ज़िंदगी भर के लिए पैरालाइज हो गए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अब शायद उनकी ज़िंदगी इसी तरह से गुजरेगी। वो अपना हाथ उसके हाथ से निकालते हुए बोला तो दर हैरानगी से देख कर रह गई। वो किसके बारे में बात कर रहा था? क्या वो उसके बाप के बारे में बात कर रहा था? कैसे? वो काफ़ी देर के बाद बस इतना ही बोल पाई थी। बी ने उन्हें जो फ़ोन किया था उसमें होने वाली बातों की वजह से चाचू साईं यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी ये हालत हो गई। वो उस दिन तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर देना चाहते थे, किस्मत ने साथ ना दिया। उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई तो मुझे उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा, और डॉक्टर ने क्या कहा उसके बाद मज़ीद कुछ कहने और सुनने के लिए बाकी बचा ही नहीं था। बाबा साईं उन्हें 1 हफ़्ते के बाद यहाँ से पेरिस लेकर जाने वाले हैं। बस अल्लाह ने चाहा तो वहाँ ज़रूर कुछ बेहतर हो जाएगा। वो जैसे उससे ज़्यादा खुद को हिम्मत दे रहा था, जबकि दिल की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो तो अपने बाप को ठीक ठाक छोड़ कर आई थी। वो कहाँ जानती थी कि उसका बाप इतना बीमार हो जाएगा। तो क्या पेरिस जाकर बाबा साईं ठीक हो जाएंगे? उसने काफ़ी देर के बाद पूछा। अगर अल्लाह ने चाहा तो हो जाएंगे। अल्लाह बस उनके हक़ में बेहतरी करे। तुम आराम करो, इस कंडीशन में तुम्हारे लिए स्ट्रेस लेना बुरा साबित हो सकता है, और मैं अपने बच्चे के मामले में किसी तरह का कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसके लहजे में वाज़ेह वार्निंग थी, जिसे महसूस करके दर को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन बोली कुछ भी नहीं। जिस तरह से वो सीट के साथ टेक लगाए आंखें मूंदे हुए था, वो भी आंखें बंद करके वहीं सोने की कोशिश करने लगी। घर में उनका ग्रैंड वेलकम हुआ था। किसी ने कोई दूसरी तीसरी बात नहीं की थी, बस वो अपने बाबा साईं से मिलना चाहती थी। बेटा साईं, अब तुम रेस्ट करो, अपने बाबा साईं से बाद में मिल लेना। वो इस वक्त आराम कर रहे हैं, दवाइयों के ज़ेर असर हैं। फ़िलहाल तुम्हारा उनसे मिलना शायद उनके लिए नुकसानदेह हो। अपनी हालत की वजह से वो बार बार जज्बाती हो जाती हैं, और डॉक्टर ने फ़िलहाल उन्हें टेंशन से मना किया हुआ है। वो उसे समझाते हुए बोले, ना जाने दारम साईं ने घर में क्या बताया था कि किसी ने भी किसी तरह का कोई सवाल न किया। सब लोग उसके बच्चे के लिए बेहद खुश थे। हर किसी के लिए दारम शाह का बच्चा अहमियत रखता था। किसी ने बीन या समरा के बारे में कोई बात नहीं की थी, जबकि इस बारे में सब लोग ही जानते थे। दारम साईं उसे दरवाजे पर ही छोड़कर चला गया था। उसने बड़ी मुश्किल से अंदर तक कदम बढ़ाए थे, लेकिन अंदर उसे किसी के भी सवाल का जवाब देने की ज़रूरत न पड़ी। जाविश उसे खुद कमरे में छोड़ने के लिए आई थी, जबकि कुछ दिन पहले तक उससे कितनी ज़्यादा नाराज़ थी वो सिर्फ वही जानती थी। दर, मैं कितनी खुश हूँ तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। मैं फूफो बनने वाली हूँ और खाला भी। अपनी ये खुशियाँ किससे शेयर करूँ? मैंने उस सानिया को बताया तो कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी तो खाला बनने जा रही हूँ, मैं भी तो फूफो बनने वाली हूँ। लेकिन एक बार तुम्हारा और अद्दा साईं का बच्चा आ जाए, फिर मैंने सानिया को उठाने के लिए भी नहीं देना। वो सिर्फ मेरा शहज़ादा होगा, और सिर्फ मैं ही उसे प्यार करूँगी, मैं तुम्हें भी नहीं दूँगी। वो कमरे में लाते हुए उसके पास बैठी अपने ही अंदाजे में बोलती चली गई थी, जबकि दर मुस्कुराते हुए उसे सुन रही थी। उसके अंदाज में कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं थी। न जाने दारम ने सबको उसके बारे में क्या बताया था कि किसी के लबों पर कोई सवाल तक न आया। वो खुद हैरान थी कि अभी तक उससे किसी ने कोई भी सवाल क्यों नहीं किया था। जाविश, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, पहले तुम मुझे ये बताओ कि मेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ था? बाबा साईं की हालत मेरी वजह से है, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे सब के बारे में
मैं जानती हूँ नूर, प्लीज़ तुम रो मत, हमें सब कुछ पता है। दारोमद्दा साईं ने हमें सब कुछ बताया। तुम लोगों के खिलाफ साजिश की गई थी। चाचू साईं को बीन नाम के एक आदमी का फ़ोन आया था और उसने चाचू साईं से बहुत गिरी हुई बातें की थी तुम्हारे बारे में। और फिर समरा चाची तुम्हारी मम्मा ने भी फ़ोन पर यही कहा कि तुम तलाक चाहती हो और तुम्हें दारोमद्दा के साथ सारी ज़िंदगी नहीं रहना। हम सबको भी यही लगा कि तुमने खुद वो फ़ोन करवाया है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये सब कुछ झूठ है। तुम्हारी मामा ने ये सब कुछ किया है, लेकिन तुम्हारी माँ ऐसा क्यों चाहती थी ये किसी को पता नहीं, लेकिन उन्होंने सच में तुम्हारा नाम लेकर घर फ़ोन किया था और कहा था कि तुम तलाक चाहती हो। अद्दा साईं बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उनका एक्सीडेंट हो गया था, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि शायद उनकी जान भी ना बचे, लेकिन अल्लाह हमेशा अपने बंदों का साथ देता है। तो दारामद्दा साई का साथ कैसे छोड़ सकता था। हम सब तो इनकी बातों पर यकीन आ गया था, लेकिन परसों अचानक दारामद्दा साई ने कहा कि वो तुम्हें लेने के लिए जा रहे हैं और ये भी बताया कि घर में जो भी बात हुई है वो सब झूठ था, एक साजिश थी जो समरा ने की थी शर्मा चाचू साई के खिलाफ। उनसे बदला लेना चाहती थी और हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान करना चाहती थी, लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उसका शौहर और वो आदमी जिसका नाम तुम्हारे नाम के साथ जोड़ा गया था वो किसी केस में पकड़े गए। देखा कैसे अल्लाह अपने बंदों का साथ देता है। वो बेहद खुशी से उसे अपने साथ लगाए हुए बोल रही थी। यानी कि दारम शाह ने खुद ही हर चीज़ को एक साजिश का नाम देकर घर में ये बात ख़त्म कर दी थी, लेकिन दारम को खुद इस बात पर कितना यकीन था ये तो उसके आने के बाद ही पता चलेगा। वो रात देर तक उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। रात के 2 बजने वाले थे और दारम साईं गायब था। दारम साईं क्या आप उनसे नाराज़ हैं? वो उसकी तस्वीर देखते हुए बोली। उसकी आंखों में वीरानी सी उतरने लगी थी। उसे दारम की नाराज़गी का सोच सोच कर बुरा लग रहा था। नहीं, आप मुझसे नाराज़ नहीं हो सकते। आप मुझसे बहुत 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 ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मैं तो आपका दिल हूँ, कोई अपने दिल से कैसे नाराज़ हो सकता है। मुझे पता है आपको कोई ज़रूरी काम आ गया होगा, वरना आप मुझसे दूर नहीं रह सकते। उसने खुद ही अपनी बेचैनी का जवाब दिया था। उसे यकीन था वो उससे नाराज़ नहीं रह सकता, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज तो कर रहा था। अगर वो मुझसे नाराज़ हुए तो? उसके दिल ने फिर से पीठ पकड़ी। हाँ तो क्या हुआ, अगर नाराज़ हुए तो मैं मना लूँगी, वो कोई गैर थोड़ी है, मेरे अपने दारम साईं हैं। मैं मना सकती हूँ अगर उनको। अगर ज़्यादा नाराज़ हुए तो? उसके दिल में फिर सवाल आया। हाँ तो ज़्यादा मनाऊँगी, हाँ मैं मनाऊँगी, बल्कि मना कर दम लूँगी। एक बार आ तो जाएँ कहीं नाराज़गी ज़ाहिर करने के लिए। वो वापस नहीं आए अब तक। फ़ोन करती हूँ। उसने सोचा, फिर मुँह बसोर कर रह गई। फ़ोन तो उसके पास था ही नहीं, वो तो वहीं लंदन में रह गया था। इंतज़ार ही करती हूँ। वो फिर से उसके इंतज़ार में बैठ गई, लेकिन उसने तो शायद आज ना आने की कसम खा रखी थी। उसका इंतज़ार करते करते डर की आँख लगी, उसे खुद भी पता न चला। वो सो रही थी, कब अचानक उसे अबकाई आने लगी। वो तेज़ी से बेड से उठकर वॉशरूम में बंद हो गई। वापस आई तो सिन्नान साईं गहरी नींद में था, लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी। इसलिए वो बेड पर जाने के बजाय खिड़की पर आ रुकी। ठंडी हवा ने उसे खुशगवार राहत का एहसास दिया था। उसके लब खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई थी। जब नीचे लॉन की जानिब नज़र गई, जहाँ से मुस्कान खड़ी नज़र आई, वो वहाँ क्या कर रही थी, वो भी रात के इस वक्त। वो आजकल ज़्यादातर वक्त उसके साथ ही गुजारती थी ताकि उसके यहाँ आने का मकसद जान सके। उसे साहिर शाह की जान लेने का खुद अपने कानों से सुना था। वो यहाँ साहिर साई की जान लेने की नीयत से आई थी, लेकिन सिन्नान साईं और उसने मुस्कान पर पूरी नज़र रखी हुई थी, यहाँ तक कि पुलिस को भी अलर्ट कर दिया था। ये अलग बात थी कि साहिर ने बात हंसी में टाल दी थी और दारम ने यकीन ही नहीं किया था, इसलिए अब वो उसके हर मोमेंट पर नज़र रखे हुए थे। लेकिन इसके बाद उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिसके बिना पर वो उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सके। ये लड़की बहुत तेज़ थी, आसानी से उनके हाथ नहीं आने वाली थी। उसने अपना फ़ोन सबसे छुपा कर रखा था, लेकिन जरनिश ने उसके फ़ोन को भी देखा था और उसकी गैर मौजूदगी में फ़ोन ढूंढने की भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो मिला ही नहीं, वरना वो उसका फ़ोन दारम साईं के हवाले करती। लेकिन इस वक्त उसका फ़ोन उसके हाथ में था। वो लॉन में रखे सोफ़े पर बैठी मुसलसल कुछ टाइप कर रही थी, जब अचानक जरनिश को वहाँ आते देख उसे अपना फ़ोन छुपा लिया था, जो जरनिश की निगाहों से छुपा न रहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो मुस्कान? रात के इस वक्त तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। साहिर अद्दा साईं के कुत्ते खुले होते हैं, घर के लोगों के अलावा वो किसी से वाकिफ़ नहीं है। इस तरह से चीरते हैं कि इंसान की शक्ल भी पहचान में नहीं आती। वो झूठ हरगिज़ नहीं बोल रही थी, ये सच था कि साहिर के कुत्ते बहुत ख़तरनाक थे, जो किसी को घर वालों के अलावा किसी को नहीं पहचानते थे। वो आज कुत्ते बांधे हुए थे क्योंकि साहिर साईं अब तक घर नहीं आया था। उसे मुस्कुरा कर बताया था। डॉक्टर ने कहा था कि एक अच्छे माहौल में रहने की वजह से अब उसकी ज़हनी हालत काफ़ी अच्छी हो गई है। साहिर अद्दा साईं को नाम से ना पुकारा करो। वो बड़े हैं तुमसे, तुम भी उन्हें अद्दा साईं कहा करो। उसके लहजे में ज़रा सख्ती थी क्योंकि वो नोट कर रही थी कि मुस्कान सिन्नान से ज़्यादा साहिर के आगे पीछे घूमती है। उसकी बहन तो थी ही बेवकूफ़, लेकिन वो लापरवाह नहीं थी। ये लड़की जो रिश्ते में उसकी सौतन थी, यकीनन उसके बहन के साथ भी ऐसा ही कोई ताल्लुक़ बनाना चाहती थी।
तभी तो इस वक्त यहाँ बैठी साहिर का इंतज़ार कर रही थी और उसकी बहन कमरे में आराम कर रही थी। उसे समझ नहीं आता था, एक तरफ ये लड़की फ़ोन पर किसी से साहिर साईं की जान लेने की बात कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसकी आंखों में साहिर शाह के लिए कुछ और महसूस कर रही थी। हो ना हो उसके दिल में साहिर के लिए कुछ तो था। वो अपनी ही सोचों में गुम थी जब मेन गेट खुला और गाड़ी अंदर दाखिल हुई। वो दोनों गाड़ी से उतरकर उनकी तरफ ही आए थे। ये कौन सा वक्त है गप्पे मारने का, जाओ कमरे में, तुम सर्दी में यहाँ रुकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। दारम साईं मुस्कान को नज़रअंदाज करता जरनिश से मुखातिब हुआ था, जबकि जरनिश का ध्यान तो मुस्कान के चेहरे की तरफ था जो साहिर को देख रही थी। आज तो अच्छा खासा थक गया, मैं छत पर जा रहा हूँ, आराम से कहता आगे बढ़ गया, जबकि मुस्कान भी गुड नाइट बोलकर चली गई। अदा साईं इस मुस्कान पर नज़र रखें, इसकी साहिर अदा पर नीयत ख़राब है, वो पूरे यकीन से बोली। उसकी राजदाराना अंदाज पर पहले तो दारम हैरान हुआ, फिर उसका कहका बेसाख्ता था। जरनिश, पहले तुम कह रही थी कि मुस्कान यहाँ साहिर को मारने की नीयत से आई है, अब तुम कह रही हो कि इसकी साहिर साईं पर नीयत ख़राब है। तुम फैसला कर लो कि दोनों में सच क्या है। उसकी बात को मजाक में ले रहा था। अद्दा साईं, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें, ये मुस्कान ज़रूर कोई गेम खेल रही है। उसे यकीन दिलाते हुए बोली, जरनिश बेटा, तुम इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हो और कुछ भी नहीं। देखो इसकी केयर करो, वो एक बार ठीक हो जाए तो मैं इसको वापस भेज दूँगा। वो सारी ज़िंदगी यहाँ नहीं रहेगी, मैं उसे एक महफूज फ्यूचर देना चाहता हूँ। वो एक बार ठीक हो जाए तो मैं खुद उसे भेज दूँगा, तुम फिक्र मत करो, वो कभी तुम्हारी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करेगी। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अपनी बहन की सौतन को अपने घर में जगह दूँगा। मुस्कान तुम्हारा मसला नहीं है, और अगर उसकी साहिर साईं पर बुरी नज़र है तो तुम अपनी बिल्ली को बता दो, वो खुद संभाल लेगी और फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मेरी बिल्ली पंजे भी मार लेती है। वो मुस्कुरा कर उससे कहता छत की जानिब बढ़ गया, जबकि वो ये सोच रही थी कि ये बात अगर उसने जाविश के कानों से निकाल दी कि उसके साहिर शाह पर गंदी वाली नज़र है, तो वो मुस्कान का क्या हाल करेगी, क्योंकि वो तो बचपन से ही अपनी चीज़ों पर किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं करती। साहिर शाह तो फिर उसका शौहर था, वो कल ही जाविश को बताऊँगी, उसने सोचा और अपने कमरे की तरफ चली गई थी। क्या बात है साहिर साईं, तुम इतनी जल्दी ऊपर क्यों आ गए हो, खैरियत तो थी? वो ऊपर आते हुए उससे सवाल करने लगा तो साहिर ने एक निगाह उसकी जानब देखा था। हाँ हाँ, मतलब जरनिश को शक दुरुस्त है, गंदी नज़र है इस मुस्कान की तुम पर, वो कहका लगाते हुए बोला। क्या तुम्हारी नज़र में इस बात की कोई अहमियत नहीं? मेहंदी वाली रात ही लड़की मेरे पीछे किचन तक आ गई थी दारम साईं, उसने बहुत अजीब तरीके से मुझे पीछे से पकड़ा, वो गुस्से से बोला था। तो तुमने एहतजाज क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे लगा था मेरे पीछे वो कुछ बोलते बोलते रुक गया, जैसे याद आ गया कि वो किसके सामने बोल रहा है। क्या तुम्हें मुस्कान की 5 फीट 8 इंच की हाइट मेरी बहन की 5 फीट के बराबर लगती है? उसे देखते हुए सवाल करने लगा। मेरी आंखें पीछे नहीं हैं तारम साईं, और वहाँ अंधेरा था। फिर पता कैसे चला कि वह जाविश नहीं है? उसके हाथों पर मेहंदी नहीं थी। अंधेरे में शक्ल नज़र नहीं आई, कद नज़र नहीं आई, लेकिन मेहंदी नज़र आ गई। उसके लहजे में शक था। साहिर साईं को उसके अंदाज पर हंसी आई। दांत अंदर करो साहिर शाह, वरना मैं तोड़ दूंगा। बताओ, अगर तुम जान गए थे कि वो जाविश नहीं है तो क्यों एंजॉय करते रहे? वो सख्त गुस्से में था। अरे तारम साईं, मुझे क्या पीछे से इल्हाम होना था कि वो जाविश नहीं है? वो तो हाथ देखकर मुझे पता चला, वो भी डाइनिंग रूम की लाइट ऑन थी इसलिए। वो तो जाविश आई तो उसने मुझे छोड़ा, इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता हूँ मुझे छोड़कर भाग गई। मैं उसके पीछे जाने लगा था कि जाविश आई। अब ये मत कहना कि मैंने जाविश को क्यों बुलाया था। वो जल्दी जल्दी इस टॉपिक को ख़त्म कर देना चाहता था, लेकिन फिर खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। अब दारम साईं सीने पर हाथ बांधे साहिर से इनके सवाल का जवाब चाहता था। मैंने बुलाया था, उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए बताया। उसकी मेहंदी देखनी थी, इस बार आवाज़ कम थी और वो चेहरा झुका चुका था। दारम साईं से मज़ीद सीरियस न रहा गया था। दारम का कहका बेसाख्ता था, जबकि उसके इस कहके पर साहिर ने नाराज़गी से देखा था। एक तुम्हारी बहन का सत्यानाश काफ़ी नहीं है, जो तुमने भी मेरा दिल जलाना शुरू कर दिया है। तो मैं क्या करूं? जो काम चाचू साईं, आरिश साईं, सिन्नान साईं, यहाँ तक कि मैं ना कर सका, वो मेरी बहन के सत्यानाश ने कर दिया, तो मैं खुश ना? वो मेरी बहन के सत्यानाश ने कर दिया तो मैं कोई खुश भी ना हूँ। खैर, अब तुम्हें मुस्कान की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जरनिश की नज़र भी है उसकी हरकतों पर। सुबह तक बात तुम्हारी बीवी के कानों में पड़ जाएगी और मेरी बिल्ली अपनी चीज़ों को लेकर बहुत पजेसिव है, नज़र उठाने वाले की आंखें फोड़ देगी मेरी शेरनी। डोंट वरी। वो उसका कंधा थपथपाता उसे रिलैक्स कर गया था। पहले तुम क्लियर कर दो, तुम्हारी बहन बिल्ली है या शेरनी? वो उसके साथ ही हंसे हुए सीढ़ियाँ उतरने लगा। मेरे लिए तो वो जो भी है, मुस्कान के लिए क्या साबित होगी पता नहीं। वो कमरे में आया तो मलका आलिया बेड पर फैले आराम कर रही थी। वहीं उसके करीब बैठे वो सिगरेट सुलगाकर उसे देखने लगा था। सिर्फ 11 दिन और जाविश मैडम, तुम्हारी नींदें ना हराम कर दी तो मेरा नाम साहिर शाह नहीं। उसका चेहरा निगाहों में लिए गैर महसूस अंदाज में अपने लब उसके लबों को छूता पीछे हटा था, जिसके जवाब में सोई हुई जरनिश ने मुंह बनाकर लबों पर हाथ फेर कर साथ में छोटी सी नाक को भी छुआ था, गोया उसके मुंह से उसे सिगरेट की स्मेल आई थी। तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने मेरे लम्स को अपने होठों से साफ किया? वो गुस्से से कहता
उसे देखता उसके चेहरे पर झुकने लगा था। नो मेरी मासूम सी लोमड़ी, नो, इसकी सज़ा तुम्हें ये सत्यानाश ख़त्म होने के बाद मिलेगी। वो खुद से अहद करता उठकर बैठा, सिगरेट मुकम्मल किया और फ्रेश होने चला गया। दारमसाई ने कमरे में कदम रखा तो दर को सोते हुए पाया। उसे सोते देखकर दारम को कोई खुशी नहीं हुई थी। वो यहाँ इतना बेचैन था, एक पल भी सुकून से सो नहीं पाया था, और ये मुहतरमा आते ही घोड़े बेचकर सो गई और दारमशाह इसे सोने दे, ऐसा तो नामुमकिन था। लेकिन वो जानता था इस वक्त उसे जगाकर हिसाब किताब करने से उसके अपने ही बच्चे की नींद ख़राब होगी, और वो अपने बच्चे की सेहत पर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो फ्रेश होकर आया और बेड पर लेटकर फ़िलहाल उसे जगाने का बिल्कुल इरादा नहीं रखता था। क्या मेरा बच्चा इसके पेट के अंदर सो रहा होगा? उसने खुद से सवाल करते हुए उसे अपनी निगाहों के हिसार में लिया था। अंदर बेटा होगा या बेटी? वो मुतजस्सिस हुआ था, फिर उसके पेट के करीब झुका। ओए, अंदर कौन है, बताओ। जी, तो ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि एपिसोड आपको कैसी लग रही है, बल्कि कंप्लीट अभी तक जितना नॉवल हो चुका है आपको कैसा लग रहा है। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आप लोग रिस्पॉन्स लास्ट में दीजिएगा और जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है? तो आप लोग अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।